Hello everyone, welcome to Karma Education. This is the channel for UGC NET Education Paper 2 only, and it has a target to cover the whole syllabus. We have completed Unit 2, we have explained all the topics of Unit 2, and we have discussed the previous year question answer of Unit 2. And now we have started again Unit 1, and in Unit 1 we have completed the topic Sankhya Yoga Vedanta Buddhism Jainism. In this video we will discuss Dayanand Darshan. Dayanand Darshan. Maharishi Dayanand Saraswati was born on 12 February 1824 to a Hindu family in Tankara, which is the place of Kathiawar region of Gujarat. His born name was Mool Shankar Tiwari. Karshanji Lalji Kapadi was his father and Yashodabai was his mother. And usually at the age of 8, his Upanayana ceremony was performed as an entry of formal education. He spent nearly 25 years of his life as a wandering monk to search of religious truth. ये 25 सालों तक वो हिमालयन माउंटेन में, फॉरेस्ट में एंड सम पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ पे वो एक वंडरिंग मॉन्क जैसे घूम रहे थे फॉर सर्चिंग ऑफ रिलीजियस ट्रूथ. और इस टाइम वो बहुत सारे योगा प्रैक्टिस कर रहे थे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ योगा वो प्रैक्टिस कर रहे थे एंड बिकेम ए डिसाइपल ऑफ बिराजानंद दंदेशा. बिराजानंद दंदेशा was his religious teacher. So Dayanand Saraswati was a philosopher, educationist, socio-religious reformer, and of course he was famous for foundation of Arya Samaj. Arya Samaj was a reform movement of the Vedic धर्म. क्योंकि उस टाइम हिंदू धर्म में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे डेड प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स फॉलो किया जाता था जो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता था और वो हार्मफुल भी था. सो दैट्स वाई इट वॉज नीडेड टू फॉर्म न्यू कंसेप्ट एंड दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज. ही वॉज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ वेदास. वो वेद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे एंड बिकॉज ऑफ इट he raised the slogan back to Vedas. Right, at that time Mahatma Gandhi, Rishi Aurobindo, these personalities also support the Vedas, the concept of Vedas, but the personality of Dayanand Saraswati was different in terms of that he never accepts things without logical reason. किसी भी चीज़ का अगर लॉजिक नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So that's why he was also known as a great rationalist. Right. He also focused on human welfare. Beside this, he also focused on human welfare. And he was for the first time called for Swaraj. We know that it was the slogan of Lokmanya Tilak. But for the first time, it was said by Dayanand Saraswati by saying that India for Indians. Okay. Arya Samaj was the famous foundation of Maharishi Dayanand Saraswati. It was founded in 1875. यहाँ पे वो क्या किए थे, बहुत सारे रिलीजियंस और कम्युनिटीज़ का जितने भी बैड रिचुअल्स और बैड प्रैक्टिसेस, डेड प्रैक्टिसेस हुआ करता था, इन सब चीज़ों का वो कंडेम किए थे. Like idol worship, animal sacrifice, child marriage, any type of discrimination against women, ये सब चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा कंडेम किए थे थ्रू आर्य समाज. एंड आर्य समाज हैज़ स्टार्टेड many schools and colleges. These are also known as Dayanand Anglo-Vedic schools and colleges. Right. Now works of Maharishi Dayanand Saraswati. उनका 60 के ऊपर राइटिंग्स है, 16 एक्सप्लेनेशंस है, 6 वेदांगस के ऊपर, इनकम्प्लीट कमेंट्री है अष्टाध्यायी और पाणिनीज ग्रामर के ऊपर,
फिर एथिक्स, मोरालिटी, वैदिक रिचुअल्स के ऊपर छोटा छोटा ट्रैक उन्होंने लिखे थे। और उनका जो मेजर वर्क्स है वो है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ भूमिका, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्यम एंड यजुर्वेद भाष्यम। Philosophical view of Dayanand Saraswati. He accepted the concept of human nature as it explained in Vedas and Upanishads. वेद में ह्यूमन नेचर को ऐसे एक्सप्लेन किया गया था कि ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर एक माइंड बोल के, मन बोल के एक चीज़ रहता है, वो हार्ट में रहता है, रिसाइड्स इन द हार्ट और हृदय। और ये माइंड जो है ये बॉडी और सोल को रिलेट करता है। और इसके अलावा इसका और एक काम था टू कंट्रोल द 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना, 5 मोटर ऑर्गन जिसके द्वारा हम लोग मूवमेंट करते हैं इसको कंट्रोल करना, 5 प्राणास को कंट्रोल करना, और इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि को कंट्रोल करना। ये मन का यू कैन से द वर्क है। ओके, सो वेद में ये जो एक्सप्लेनेशन किया गया था ह्यूमन नेचर का, इसको एक्सेप्ट किए थे दयानंद सरस्वती। एंड इन टर्म्स ऑफ सोल, वैदिक साइकोलॉजी सेज दैट मैन इज नाइदर बॉडी, ह्यूमन बीइंग ना तो एक बॉडी है, ना तो मन है, ना तो ये सम ऑर्गन्स, कंपाइलेशन ऑफ सम ऑर्गन्स मीन्स कुछ ऑर्गन का एक कंपाइलेशन है, बट द सोल, एक ह्यूमन बीइंग क्या है ना, एक सोल है। ये ना तो बॉडी है, ना तो मन है और माइंड है, और ना तो सम कंपाइलेशन ऑफ सम ऑर्गन्स है, ये एक सोल है मीन्स आत्मा है। दयानंद कंसिडर्ड दैट ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियली ए सोल। ओके, और ये जो सोल है, यहाँ पे इस सोल में नॉलेज कहाँ से आता है ना, 5 कोसास के माध्यम से सोल को नॉलेज मिलता है। तो ये 5 कोसास क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम 5 कोसास आर द फिजिकल सिस्टम, इट इज़ रिलेटेड विथ ग्रॉस फिजिकल बॉडी, इसको हम लोग अन्नमाया कोशा बोलते हैं। फिर वाइटल सिस्टम, वाइटल सिस्टम इज रिलेटेड विथ आवर इनर वर्क ऑफ बॉडी मीन्स प्राणा, और हम लोग इसको बोलते हैं कि जो जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर हम लोगों का जो इनर ऑर्गन्स है उसका जो वर्क है, ये सब इंक्लूड होता है वाइटल बॉडी में, इसको हम लोग प्राणमय कोशा बोलते हैं। फिर मेंटो मोटर सिस्टम, इट इज़ रिलेटेड विथ एक्शन, और अनदर नेम इज आनंदमय कोशा, राइट। देन मेंटो सेंसरी सिस्टम विच इज़ रिलेटेड विथ 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन के माध्यम से सोल को जो नॉलेज मिलते हैं ये उसी रिलेटेड है, इसको हम लोग विज्ञान माया कोशा भी बोलते हैं। फिर स्पिरिचुअल इमोशनल सिस्टम, ये इमोशन रिलेटेड है और इसको हम लोग मन माया कोशा बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द 5 कोशास एज मीडियम ऑफ सोल्स नॉलेज। ओके, नाउ 3 स्टेट्स ऑफ सोल। वेद में सोल को 3 स्टेट्स और फेज में डिवाइड किया गया है। एक है वेकफुल फेज मीन्स जब हम जगे रहते हैं, फिर ड्रीमिंग फेज जब हम सपने देखते हैं उस टाइम का ड्रीमिंग फेज, देन स्लम्बरिंग फेज और सुषुप्ति और साउंड स्लीप जब हम बहुत डीप स्लीप में रहते हैं, इसको सुषुप्ति भी बोलते हैं। और ह्यूमन सोल डिफरेंट टाइम में किसी एक फेज में रहते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है सोल का, सोल के जो स्टेजेस है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वैदिक एक्सप्लेनेशन, उसको दयानंद सरस्वती ने एक्सेप्ट किए थे। 4 kinds of bodies. He has explained 4 bodies. First of all, the gross physical body. The gross physical body includes 5 gyanendriyas, 5 कर्मेंद्रियas and 5 महाभूतास.
इसका मतलब है जो ग्रॉस फिजिकल बॉडी है, जो हम देख सकते हैं, जो हम देख पाते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और पंच जो महाभूताज हैं उससे बनता है, द ग्रॉस फिजिकल बॉडी। नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअल और नेचुरल बॉडी। इट इज़ द पावर ऑफ सोल। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। ये एक स्टेज है सोल का, ठीक है। फिर है द कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी इज कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री मैटर प्रकृति। एलिमेंट्री मैटर प्रकृति से ये बनता है, और इस स्टेज में पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, डीप कंसंट्रेशन इज मैंडेटरी। और उसके द्वारा हम लोग जब ड्रीमलेस साउंड स्लीप में जाएंगे तभी हम लोग इस स्टेज में पहुंच पाएंगे। फिर तुर्यवडी और समाधि, इट इज़ द स्टेज ऑफ समाधि। ये भी परफेक्ट कंसंट्रेशन और योगा के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये है 4 बॉडीज which was explained by Dayanand Saraswati. And other thing is the 4 faculties. He accepted the mind, intellect, chitta and ego as 4 faculties of the inner instrument of human psychology. Okay. Aims of education according to Dayanand Saraswati. According to him, education should be not only to impart knowledge but also to inculcate spiritual values and to remove ignorance. उनका ये कहना था कि एजुकेशन बस नॉलेज प्रोवाइडर के माध्यम से ना देखा जाए, इसको एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को इग्नोरेंस दूर करना है और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है। मीन्स आध्यात्मिक जो वैल्यूज़ है वो बच्चों के अंदर एजुकेशन के माध्यम से लाना है। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे उन्होंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए थे एजुकेशन का। दीज आर प्रोविजन ऑफ राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का प्रोविजन एजुकेशन के माध्यम से होना चाहिए। कल्टिवेशन ऑफ कल्चर, बस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड नहीं, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कल्चर कल्टिवेट करने का क्षमता एजुकेशन में होना चाहिए। इंक्रीज ऑफ रिलीजियोसिटी, सुपरस्टिशन नहीं, रिलीजियसिटी बढ़ाना चाहिए एजुकेशन के माध्यम से। देन इंक्रीज ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल एक एजुकेटेड पर्सन में होना चाहिए। फिर लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से हम लोगों को लिबरेशन मिलना चाहिए। उन्होंने ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन का आइडेंटिफाई किए थे। दयानंद पॉइंटेड आउट फॉलोइंग characteristics of avidya or ignorance before define vidya or right knowledge. Right knowledge और विद्या को डिफाइन करने से पहले उन्होंने अविद्या का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आउट किए थे। These are to regard impure things as pure is अविद्या। अगर हम जो अपवित्र है, जो अशुद्ध है, उसको शुद्ध मान लेते हैं तो ये वन टाइप ऑफ इग्नोरेंस है और अविद्या है। To consider dead material things as part of soul is avidya. अगर मृत सामग्री को हम लोग पार्ट ऑफ सोल मान लेते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ अविद्या है। To believe eroticism as source of happiness is avidya. कामुकता को अगर हम लोग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानते हैं तो वो भी एक इग्नोरेंस है। To remove all these ignorance from the mind of learner should be the aim of education. Right? फिर हम लोग क्यों उनको रैशनलिस्ट बोलते हैं? ही वॉज रैशनलिस्ट एज ही सेड टू लुक अपन थिंग्स व्हाट इज टेम्परल सी एज टेम्परल। उनका ये कहना है कि चीज़ों को ऐसे देखो कि जो सामयिक है, जो टेम्परल है, उसको टेम्परल ही देखो, उसको परमानेंट के हिसाब से ना देखो। व्हाट इज़ प्योर एज प्योर, जो प्योर है, जो शुद्ध है, उसको शुद्ध देखो। जो इम्प्योर है उसको इम्प्योर ही देखो। जो पेनफुल है उसको पेनफुल जैसे ही देखो। जो प्लेजर है, जो खुशी, जिससे खुशी मिलता है, उसको खुशी के माध्यम से ही देखो। जो सोललेस है मीन्स जो निर्जीव है उसको निर्जीव ही देखो।
ये है विद्या और ट्रू नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम। इसलिए उनको हम लोग रैशनलिस्ट भी बोलते हैं कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही देखो। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम salvation should be the aim of education beside to provide right knowledge and right conduct। उनका ये कहना है कि एजुकेशन का एम लिबरेशन पाना, सल्वेशन पाना ऐसा होना चाहिए, बिसाइड टू प्रोवाइड राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज प्रोवाइड करना, राइट कंडक्ट प्रोवाइड करना, कल्चर कल्टिवेट करना, ये सब तो एम होना ही है एजुकेशन का। इसके साथ साथ एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को लिबरेशन कैसे मिल सकता है, ये भी इसका एम होना चाहिए। दैट्स वाई वी से दैट हिज अप्रोच वॉज प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। उनका जो अप्रोच है वो व्यावहारिक है, राइट। मीन्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती there are three great teachers: father, mother and instructor। ये तीनों टीचर्स हेल्प करते हैं बच्चों का जो फ्यूचर है उसको परफेक्टली बनाने में, और उन लोगों का जो गुड कंडक्ट है उसको प्रमोट करने में ये तीनों टीचर्स का हेल्प लगता है। और क्या मीन्स ऑफ एजुकेशन शुड बी टू अवॉइड सुपरस्टिशंस एंड टू बिल्ड ए साइंटिफिक आउटलुक। इसका मतलब ये है कि मीन्स ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बस नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि जो अंधविश्वास है वो दूर करना इसका मकसद होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक विचार है उसको बिल्डअप करना चाहिए। फिर रैशनलिज्म वुड बी डेवलप्ड बाय एजुकेशन, मीन्स युक्तिवाद, ये भी एजुकेशन के द्वारा बच्चों के अंदर डेवलप होना चाहिए। फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनाम और सज़ा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की इंटायर जो एजुकेशनल लाइफ है उसमें। सो दीज आर सम मीन्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती। मीडियम ऑफ टीचिंग, as he believed that foreign language as medium of instruction hampers original and creative thinking of a person. That's why he preferred mother tongue and Sanskrit language as medium of instruction than foreign language like English, both in primary and higher level of education। Means उनका ये मानना था कि अगर फॉरेन लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे और इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर फॉरेन लैंग्वेज होगा तो हमारा जो ओरिजिनलिटी है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है। तो इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक वो मदर टंग में होना चाहिए, और एट दैट टाइम लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्रेफर्ड बाई हिम। टीचिंग मेथड, दयानंद सरस्वती suggested some teaching method. These are: curriculum should be such which takes learners to the path of truth। इनका कहना है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सत्य के रास्ते में ले चले। Hindrance in education should be avoided by both teacher and student in order to achieve the aims of education। To achieve aim of education, एजुकेशन का जो एम है वो अचीव करने में जितने भी बाधाएं आती रहती है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिल के उसका हल करें और सॉल्व करें। बोथ टीचर स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ इमोरल और वीक पीपल। टीचर और स्टूडेंट दोनों को इमोरल, जो अनैतिक है, अनैतिक संग है, उससे दूर रहना चाहिए। और टीचर का एक साउंड लॉजिक और मेमोरी होना चाहिए। मीन्स टीचर का एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर और उसके साथ साथ वो तार्किक भी होना चाहिए। मॉरल एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, मॉरल एजुकेशन encourages virtues in one hand and discourage vices on the other hand। इसका मतलब ये है कि मॉरल एजुकेशन जो है ये बच्चों का जो गुण है उसको इनकरेज करता है, और जो उनमें बुराई है वो उसको डिस्करेज करता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट बी मॉडल बिफोर चिल्ड्रन। बच्चों के सामने पेरेंट्स और टीचर को एक रोल मॉडल जैसे रोल प्ले करना है। ओके और बच्चों को सच बोलना सिखाना चाहिए।
अगर बच्चों ने झूठ एक बार भी कहा तो उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, समझाना चाहिए ऐसे, ताकि वो हार्ट ना हो। उनका जो यंग स्पिरिट है, यंग जो सेंसिबिलिटीज़ है, उसको हार्ट ना करे और उसको समझाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच के रास्ते में चलना चाहिए हमेशा। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, moral education of children should be like children should avoid dishonesty, hypocrisy and ingratitude. ग्रैटिट्यूड ना होना, पाखंड होना, ये सब डिसऑनेस्टी, ये सब चीज़ों से बच्चों को दूर रहना चाहिए। बच्चों का लैंग्वेज रफ नहीं होना चाहिए, पोलाइटली उन लोगों को बात करना सिखाना चाहिए। टेम्पर कभी भी लूज नहीं करना चाहिए बच्चों को, और बात उतना ही करे जितना नेसेसरी है, नेसेसिटी के हिसाब से वो बात करना सीखे और बड़ों को रिस्पेक्ट दे। और क्या सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी मोरल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ ड्रेस एंड डाइट, दे शुड फोकस ऑन टू गेन हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज। उन बच्चों का ड्रेसिंग सेंस और डाइट ऐसा होना चाहिए ताकि वो अच्छा हेल्थ, स्ट्रेंथ और नॉलेज गेन कर सके। Universal education. Dayanand Saraswati was a strong supporter of Vedic education, as we know that, but he was not a blind supporter of anything. वैदिक एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जितने भी शॉर्टकमिंग्स थे उसको भी वो ब्लाइंड सपोर्ट करे। कुछ वैदिक स्कॉलर्स का ये कहना था कि हायर क्लासेस मेल को जिस तरीके से एजुकेशन मिलता था, जिस टाइप का, जिस लेवल का एजुकेशन मिलता था, वो शूद्रास और वुमेन को नहीं मिलता था। एज ए ह्यूमनिस्ट, दयानंद opposed this interpretation of Vedic education boldly and boldly emphasized the education must be given to all without any gender discrimination. उनका ये कहना था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों, बॉयज़ को 8 साल के एज में रेसिडेंशियल स्कूल में भेजा जाता है, वैसे ही गर्ल्स को भी भेजना चाहिए। और वुमेन को ऐसा नहीं है कि बस होम साइंस ही पढ़ाया जाए, उसके साथ साथ ग्रामर, रिलीजियन, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाए। ये है यूनिवर्सल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती। कंट्रीब्यूशन ऑफ दयानंद सरस्वती इन एजुकेशन. First of all, education for perfection. According to him, education should be for perfection of life. Education कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि लाइफ को परफेक्ट बना सके। He wanted to realize all round perfection of man. Then multi-sided curriculum. He believes specialized knowledge always create one-sided personality. एक स्पेशलाइज नॉलेज वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी हो सके और पर्टिकुलर बिलीव का भी हो सके, कि स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट और ऑल राउंड पर्सनालिटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा वन साइडेड पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। इसके लिए और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए मल्टी साइडेड करिकुलम इज़ वेरी मच नीडेड इन एजुकेशन सिस्टम। ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म. As a humanist, he condemned all superstitions, unscientific beliefs, immoralities and deceptions. एक ह्यूमनिस्ट होने के नाते वो क्या किए ना, ऑल द सुपरस्टिशंस, जितने भी अवैज्ञानिक बिलीव्स और विश्वास और अनैतिक और छल, जितने भी कपट, पाखंडता, ये सब समाज में हुआ करता था, इन सब चीज़ों का वो विरोध किए थे। Okay, and he was more positive than many contemporary positivists as he supports scientific outlook very strongly. वो उनका जो साइंटिफिक आउटलुक था वो वेरी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम जितने भी पॉजिटिविस्ट थे उनके हिसाब से।
He advised everyone to distinguish between truth and untruth, use rational criteria and accept only that which is supported by sound logic. उसी चीज़ को एक्सेप्ट करो जिसका एक प्रॉपर लॉजिक हो. ट्रूथ और अनट्रूथ के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझो और हमेशा रैशनल क्राइटेरिया यूज़ करो. He emphasized the use of reason in every field of human life. As he was a great rationalist, that's why he always used reason in every field of human life. Right? So this was a new topic of UGC NET education syllabus, and I am concluding the video over here. And this entire video was the just sum up of this particular topic, because it is a vast topic. And in the next video I will explain Islamic tradition. Be connected, viewers. Thank you.